Okay. Yes. So I will start with lecture 15 today. Okay. And uh, so I will present the lecture. So you can see on your screen lecture number 15. So uh, we have completed lecture 14 in last class. That was case 2 we have completed, and case 3 we have completed, I think, for rectangular coordinates. Case 3 we have completed for rectangular coordinates. So in case 3 you were getting the equations, and you called it a initial value problem, and you said that it was a system of equations, and you have to solve those equations using some standard methods. And I have not given the complete solution, but that is the common solution in advanced engineering mathematics. So you have 3 or 4 differential equations, and you have to solve them simultaneously. Okay, so this is the solution. Till here we have done for lecture number 14. So today I will give lecture number 15. So you can see for a tubular module. So today I will tell what all we will do. We will do this for a tubular module. Then after this we will do the equations for turbulent flow. Okay. How you similar equation for turbulent flow. And after that we will do some equations for dialysis. So these all equations I will give. So we will start with the tubular module. So now I have told you that you have to remember some equations. First equation I told you that your Navier-Stokes equations you have to remember. Every time you will not derive this. So Navier-Stokes equation, that is a standard equation, and you have to remember it. D delta P by dx is equal to minus 32 mu u by d square. So that is the governing equation of transmembrane pressure drop for a tubular module. So let's not be confused from where this equation is coming, or how, what are the various terms, because every you must know now. Delta P is the pressure drop, mu is the viscosity, u is the velocity, and d is the u is the velocity, and d is the diameter. So these all terms, every time I will not repeat now. And equations, you have to 3 equations are there. One equation is for overall mass balance, and one equation is for component balance. Okay. So these equations are one equation. These are the 3 standard equations which you have to remember every time, and one equation we will do for K. Okay. So these equations you have to remember every time that these are the standard equations, Navier-Stokes equations. So many equations are coming from TP, transport phenomena. So you have to remember this. D delta P by dx is equal to minus 32 mu u by d square. Then governing equation of cross flow velocity, du by dx is equal to minus 4j by d. So this is coming from overall mass balance. And so these are the some equations which you have to remember every time, and um, every time you will not be doing you will not be doing going to a very differential element. So this equation, you know how it is derived. It is derived using a differential element. So every time we will not go to a differential element and make the balances. So you have to remember this from the first case 1. You have to remember how this equation was derived. Okay. From using differential element, we were just doing a overall mass balance.
So you will get du by dx equal to minus 4j by d. Now, similarly, solute balance analysis over a differential element in terms of solute balance. Okay, so you are doing what is the solute coming in, what is the solute going out, and solute is going, from top and bottom also solute is going. Okay, so in case of tubular module, it will be going from the tube sides. Okay. So you will get the differential element analysis over a differential element in terms of solute balance will give you u dc dx equal to 4j by d into c minus cp. Okay. Or you can just rearrange it and you will get take u to the other side, you will get dc dx equal to 4j by d into u into c minus cp. So this is the governing equation of concentration in the bulk. Okay, so you can see is we have done many, starting from theory we have done many equations. So till now you must be acquainted with this C and CP, these all terms, and 4J and J is the permeate flux, and D into U. Okay, so that is not a du, it is D into U. Okay. D is the diameter and U is the velocity. Okay. So it is just a multiplication. So you have got another differential equation, dC dx 4J by du into C minus C. So that is the governing equation in the bulk for the component balance. And uh, bulk concentration and membrane surface concentration are related by an algebraic equation, definition of mass transfer coefficient. Okay. So we will see how bulk and membrane concentration, that is Cm. Okay, C and Cm, how they are related? They are related by K. So I've told you that you will have one equation, you have the Navier-Stokes equation, second equation you have the mass balance, and third equation you have the component balance, and fourth equation you have for K. So K for a tubular module, now you already know K for a tubular module. We have done the equation for K in of a tubular module. We have done the equations for K for a rectangular module. So that was the first thing we have done, and you have done the equation of K for tubular and rectangular modules. So you know the equation of K, all the equations of K you know. So K is equal to 1 by I into ud square by dx into raised to the power 1 by 3. Okay. And where I is equal to integral 0 to infinity exponential minus 8 by 9 phi cube minus 2 by 3 lambda phi d phi, where lambda equal to PW by Reynolds Smith d by L raised to the power 1 by 3, and PW is the Peclet number, that is non-dimensional J, or non-dimensional flux, that is J bar d by d. Okay. So that these all equations you already know. Okay. So this is equation for K, and I, these equations lambda you already know. Okay, so these are standard equations for K, and we have done the K we have derived for rectangular module and tubular module. Okay, so K equations, I and everything you must know that that was the first equation we have done for developing mass transfer boundary layer, and then after that we have introduced a parameter lambda. So this you can find by Day and Bhattacharya, and Journal of Membrane Science, page number 109, 1997. So Bhattacharya you must be knowing is professor here at IIT Kanpur. So Mr. Bhattacharya you must be knowing, he is teaching membrane science at IIT Kanpur, and Vinay sir has done PhD under Mr. Bhattacharya. तो विनय सर का जो PhD है वो इन्हीं के अंडर है, भट्टाचार्य के अंडर है, और ये मेम्ब्रेन पे ही काम कराते हैं. तो दैट इज इनका पब्लिकेशन होता रहता है जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस में. तो ये है आपका, तो उसमें आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं. और ये
मतलब यहीं पे काम किया गया है काफ़ी। तो इसके ऊपर आप लोग मतलब काफ़ी इक्वेशंस डेवलप की गई हैं और इसी पे वो काफ़ी पीएचडी वीएचडी कराते रहे हैं। ये सब्जेक्ट मतलब इक्वेशंस उनके मिस्टर भट्टाचार्य का काफ़ी इसमें काम है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशंस जो हैं इसमें उनका काफ़ी योगदान है। और आपके विनय सचान सर का उन्हीं के अंडर पीएचडी करा हुआ है, भट्टाचार्य सर के अंडर। ओके। तो आप तो ये इक्वेशंस काफ़ी मतलब जो डेवलप की गई हैं उसमें काफ़ी उन्होंने काम किया है। ओके। और जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस में उनके पब्लिकेशन होते रहते हैं। नेक्स्ट टर्बुलेंट फ्लो। तो ये आपका अब ये आपकी इक्वेशंस आ गई हैं, 4 इक्वेशंस हो गई हैं। तो ये ट्यूबुलर मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया है। ओके। और ये 4 इक्वेशंस आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये मैथमेटिक्स का काम है, दैट इज एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एंड यू हैव डेवलप्ड दी 4 इक्वेशंस एंड यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द स्टैंडर्ड। इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है इसका। आप इक्वेशन दीजिए और सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है और वो किसी भी आप मतलब मैथमेटिक्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक मिल जाएगा आपको, जैसे क्रेजिक है और ग्रेवाल है। तो काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन होता है इसका। और अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो इसका आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने बताया कि जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस, एन भट्टाचार्य, पेज नंबर 109, 1997। तो यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप कोई भी एडवांस मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि के और इक्वेशंस जो हम लोगों ने पहले डेवलप की थी, आप लोगों ने के और आई बहुत इक्वेशंस डेवलप की थी। हम लोगों ने ट्यूबुलर मॉड्यूल और रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बहुत इक्वेशंस के और आई की डेवलप की गई थी। तो आपको याद रखनी है। हम लोग ने डेवलपिंग मास्टर और बाउंड्री लेयर के केस में काफी के और आई के ऊपर काम किया था। तो वो इक्वेशंस आपको याद रखनी है। तो ये आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये देख सकते हैं ट्यूबुलर मॉड्यूल की आपकी मॉडलिंग इस तरह से होगी आपकी। तो ये आपकी लास्ट मॉड्यूल का आपका काम खत्म हो गया। इसका मतलब सारे मॉड्यूल सब अपने मॉडल कर लिए हैं। ओके। और अब आपका है टर्बुलेंट फ्लो। अब दो टर्बुलेंट फ्लो और डायलिसिस। तो जस्ट और और सो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो में भी हम लोग यही करेंगे काम। आप लोग इक्वेशंस डेवलप करेंगे कि आपका काम है खाली मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस डेवलप करना। ओके। और सॉल्यूशन आपको दैट विल बी गिवन बाय एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आपको करेक्ट इक्वेशंस लिखनी है, प्रेशर की इक्वेशन लिखनी है, यू की इक्वेशन लिखनी है, सी की इक्वेशन लिखनी है, ये सारी इक्वेशन लिखनी है, और आपको के की इक्वेशन लिखनी है, और बाकी सॉल्यूशन आपको मैथमेटिक्स से मिलेगा कि दैट इज अ सिस्टम ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स गिवन बाय एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो आपका होता है रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 के लिए, और रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2200 के लिए होता है आपका लैमिनर फ्लो। तो यहाँ पर आपको खाली एक प्रेशर की एक इक्वेशन आपकी अलग होगी। ओके। बाकी आपकी वेलोसिटी और कंसंट्रेशन की जो हम लोगों ने इक्वेशन डेवलप की थी वो तो वही लग जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट एक प्रेशर की इक्वेशन अलग होगी आपकी। तो यहाँ पर आप लोग नेवियर स्टोक्स इक्वेशन नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर अलग एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर ड्रॉप की अलग इक्वेशन होगी,
तो हम लोग एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे और उसके ऊपर एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट से x प्लस डेल्टा एक्स तक, और वेलोसिटी इज u एंड u टू u प्लस डेल्टा u, और प्रेशर p टू p प्लस डेल्टा p। तो ये हम लोग एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट, तो जस्ट एक आपकी जो प्रेशर की इक्वेशन है वो चेंज होगी, बाकी सारी इक्वेशंस आपकी वही रहेंगी, के और वो सब आपकी वही रहेंगी। तो हम लोग की इक्वेशन जो हो जाएगी P माइनस पी डी पी, दैट इज द प्रेशर एनर्जी टर्म, और आपका काइनेटिक एनर्जी टर्म आ जाएगा एक आप रो इंटू यू स्क्वायर बाय 2 माइनस रो इंटू यू प्लस यू बाय 2 होल स्क्वायर, और एक आपका फ्रिक्शन लॉस का टर्म आएगा। तो 4 रो एफ डी एक्स यू स्क्वायर बाय 2 डी ई। तो आपको याद रखना है, कई जगह डी यू और डी एक्स, कई जगह डी यू का मतलब डी इंटू यू होता है, और कई जगह यू जो होता है वो डिफरेंशियल होता है। आपको देखना है कि कब ये मतलब कहीं कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि आपका डी एक्स आपका लिखा हुआ है तो आपने उसको डिफरेंशियल बना दिया। ओके, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपकी आएगी डी डेल्टा पी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रो यू इंटू डी यू डी एक्स प्लस डब्ल्यू जे बाई क्यू इंटू रो यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू जे बाई क्यू इंटू रो जे स्क्वायर माइनस रो इंटू एफ यू स्क्वायर बाई 2h। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अब हम लोग, और f जो है वो आपका फ्रिक्शन फैक्टर है, और q और u के बीच में हम लोग ने कई बार रिलेशन कर चुके हैं। फ्लो रेट और वेलोसिटी के बीच में बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है, q इज इक्वल टू 2wh इंटू u। तो Q और U के बीच में मतलब फ्लो रेट और वेलोसिटी तो बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है। आपको वेलोसिटी दी है तो आप उसको फ्लो रेट में बहुत आराम है, और फ्लो रेट दिया हुआ है तो उसको वेलोसिटी में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो Q और U अगर आपको रिलेशन आपको हमेशा बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है। तो ये आपकी यही जो इक्वेशन है डी डेल्टा पी बाई डी एक्स की, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका जो फाइनल फॉर्म आएगा उसके लिए वो होगा और डी डेल्टा पी बाई डी एक्स इक्वल टू 2h इंटू 3uj माइनस j क्यूब बाई u माइनस एफ यू स्क्वायर, वेयर f इज द फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये आपका जो है फाइनल फॉर्म है गवर्निंग इक्वेशन फॉर डेल्टा p के लिए। तो मैंने जैसे बताया कि आपको डेल्टा p ही खाली का चेंज होगा, बाकी आपकी u और c वाली जो इक्वेशंस थी वो सेम रहेंगी। फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप, और दैट इज दी एक ग्लॉसियस फॉर्मूला होता है आपका F इज इक्वल टू 0.079 बाय रेनॉल्ड्स रेज़ टू द पावर 0.25। तो स्मूथ पाइप में क्या आपका फ्रिक्शन फैक्टर का उसके लिए, और एक काफी ग्राफ भी होता है फ्रिक्शन फैक्टर के, आपने देखे होंगे, और तो इस तरह से F की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे, जहां रेनॉल्ड्स नंबर आप जानते ही हैं इज इक्वल टू रो इनटू यू नॉट डी बाय म्यू। तो ये आपका जो है गवर्निंग इक्वेशन फॉर डेल्टा पी अब एक एकदम चेंज हो गया, क्योंकि पहले आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन यूज करते थे, और यहाँ करंट फ्लो के लिए अब आप लोग ये अलग इक्वेशन यूज करेंगे डेल्टा पी के लिए, जो कि आपने डेवलप की है एनर्जी बैलेंस ओवर ए डिफरेंशियल एलिमेंट से। एनर्जी बैलेंस पे आपने प्रेशर और प्रेशर टर्म लिया था, और आपने प्रेशर और वेलोसिटी ली थी, और फ्रिक्शन फैक्टर लिया था। ये सब टर्म्स मिक्स करके आपने डेल्टा पी की एक इक्वेशन डेवलप की है, और F जो होता है दैट इज द फ्रिक्शन फैक्टर, एंड ब्लासियस फॉर्मूला आप लोग स्मूथ पाइप के लिए होता है
और फ्रिक्शन फैक्टर के काफी ग्राफ गिवन होते हैं आपको, ठीक है। और तो रेनॉल्ड्स नंबर वर्सेस फ्रिक्शन फैक्टर करके ऐसे ग्राफ गिवन होता है, तो आप लोग को मैकेब में वैसे काफी मिल जाएगा ऐसे ग्राफ्स, अगर आप लोग देखना चाहते हैं फ्रिक्शन फैक्टर का, ठीक है। तो ये आपकी डेल्टा पी की नई इक्वेशन आ गई है, क्योंकि आपका नेवियर स्टोक्स इक्वेशन अब आप लोग पुट कर रहे हैं, ओके। लैमिनर फ्लो के लिए आप लोग पुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग ने अलग इक्वेशन डेल्टा पी के लिए डेवलप की है, और ये काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। और यू और सी की जो इक्वेशन थी, यू जो आता था वो मटेरियल बैलेंस से आता था, वो डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग मटेरियल बैलेंस करते थे, और सी जो हम डिफरेंशियल एलिमेंट के ऊपर सॉल्यूट बैलेंस करते थे। तो इस तरह से हम लोग की यू और सी की इक्वेशंस आती थी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, खाली प्रेशर की इक्वेशन में चेंज होगा। तो आपकी एक ही इक्वेशन हो जाएगी, और एक आपकी इक्वेशन के की आ जाएगी। तो के जो है अब के अब टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक अलग के होगा। तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए an expression relating C and Cm, algebraic equation connecting C and Cm via definition of mass transfer coefficient। तो यहाँ पर आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की इक्वेशन आपकी थोड़ी अलग हो जाएगी। kx इक्वल टू, अब जस्ट फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, के 0.236 I into d Reynolds to the power 1.75 स्मिथ by d square into x raised to the power 1/3। तो ये के का फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आ जाएगा टर्बुलेंट फ्लो के लिए। और आई की वैल्यू जो हो जाएगी, बस के और आई की वैल्यू बदलती रहेगी आपकी। आई की वैल्यू हो जाएगी इक्वल 0 to infinity एक्सपोनेंशियल ईटा क्यूब बाय 3 माइनस 2.82 लैम्डा dn, ओके। और लैम्डा वही आपका pw बार बाय रेनॉल्ड्स स्मिथ d बाय l टू द पावर 1/3, और pw आपका होता है jd बाय d, दैट इज योर पेकलेट नंबर। तो इस तरह से आपका के और की वैल्यू चेंज होती रहती हैं, और आपको के और के का नया एक्सप्रेशन मिल गया है आपको। तो ये जस्ट ये क्वेश्चन चेंज हुई है आपकी, और फिर वही आप मॉड्यूल की मॉडलिंग करेंगे, और आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो ये सारी इक्वेशंस फिर से आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। ये सारी 4-5 इक्वेशंस जो आपने टर्बुलेंट फ्लो के लिए डेवलप करी हैं, डेल्टा पी और यू और सी और के की जो इक्वेशंस डेवलप करी हैं, ये आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है, और आपको फाइनली सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जे का प्रोफाइल मिल जाएगी, और जो भी आपको चाहिए सी का प्रोफाइल मिल जाएगा, यू का प्रोफाइल मिल जाएगा। तो सारी प्रोफाइल आपको इसमें से मिल जाएगी। तो एक चीज मैं ऊपर बताना भूल गया, अच्छा आप लोग जो मॉड्यूल हम लोग ने जितने भी मॉड्यूल बनाए हैं, उसमें आपके ये केस नंबर 3 में आपको ये सारी इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना है आपको, और जे की प्रोफाइल मिल जाएगी, सी की प्रोफाइल मिल जाएगी, सीपी की प्रोफाइल मिल जाएगी, सीएम की प्रोफाइल मिल जाएगी, वेलोसिटी की प्रोफाइल मिल जाएगी। तो सारी प्रोफाइल आपको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, तो आपको सारी प्रोफाइल इससे ही मिल जाएगी। डेल्टा पी की प्रोफाइल मिल जाएगी आपको, ओके। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, और ये सारी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगी। तो यही है आपका मॉड्यूल की मॉडलिंग। तो ये कंप्लीट करता है आपका, सारे मॉड्यूल्स आपके मॉडल हो चुके हैं, ओके। मेम्ब्रेन का जो सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज डायलिसिस, ओके। और तो यही इक्वेशंस है आपकी सारी, और आप लोग ये सारी साथ में सॉल्व करेंगे, और आपको सारी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगी। जे की प्रोफाइल मिल जाएगी, प्रेशर की प्रोफाइल मिल जाएगी, प्रेशर और ड्रॉप ओवर द लेंथ मिल जाएगा। तो सारी प्रोफाइल आपको जितनी भी चाहिए, आपको सारी प्रोफाइल्स, ये जब आप इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो आपको सारी फाइल मिल जाएंगी। और यही चीज हम लोग केस नंबर 3 में हम लोग ने हर जगह यही किया है। सारी इक्वेशंस हैं, और हम लोग ने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, और उससे हमको सारी प्रोफाइल्स मिल गई हैं। और यही टर्बुलेंट फ्लो में आपने किया है, इक्वेशंस लिखी हैं, और आपको
ये आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो यही आप मेम्ब्रेन मॉडलिंग है, और यह मॉड्यूल मॉडलिंग है आपका। तो आप लोगों ने जो डायग्राम बनाए थे मॉड्यूल्स के, स्पाइरल वूंड मॉड्यूल और बहुत सारे मॉड्यूल्स के बनाए थे, ट्यूबुलर मॉड्यूल्स, तो वो सब मॉड्यूल्स यहाँ से हम लोग ने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर ली है। डायलिसिस पे रखे हुए हैं, और डायलिसिस मशीन है, और तो ये असल में हॉस्पिटल्स यूज होता है डायलिसिस। और डायलिसिस, और आप लोगों ने सुना होगा कि डायलिसिस पे हैं अभी। और तो उसमें क्या होता है, आपका जो होता है ह्यूमन डायलिसिस, देख सकते हैं आप, इसका एप्लीकेशंस होता है ह्यूमन डायलिसिस। उससे क्या करते हैं आप, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक यूरिया, क्रेटिनिन। तो आपका जब जैसे कुछ किडनी फंक्शन करना बंद रहती है, तो उसके लिए आप लोग को ये अलग से डायलिसिस का फंक्शन लगाना पड़ता है, ताकि ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स आपके बॉडी में होते हैं, यूरिया और क्रेटिनिन, ये सब रिमूव हो जाए डायलिसिस से। ओके। और वैसे ये नॉर्मल फंक्शन आपका किडनी का होता है, वो आपका नॉर्मली रिमूव करती है, लेकिन कई बार आपको डायलिसिस पे रखना पड़ता है ताकि आपका ये टॉक्सिक मटेरियल्स आपकी बॉडी से रिमूव हो सके। ओके। ड्राइविंग फोर्स इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस। ओके। तो डायलिसिस में ड्राइविंग फोर्स होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। और वैसे आपका मतलब हम लोग ने मेम्ब्रेन में काफी अभी तक हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस के ऊपर काम किया था, लेकिन ड्राइविंग फोर्स जो हो सकती है वो आपकी केमिकल पोटेंशियल किसी भी तरह की हो सकती है, फिर कंसंट्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल हो सकता है, फिर टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी ड्राइविंग फोर्स हो सकती है। तो अभी तक हम लोग प्रेशर की ड्राइविंग फोर्स कर रहे थे, अब आपकी ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी कंसंट्रेशन डिफरेंस। ओके। तो आप लोग ने ट्यूटोरियल में कई बार पूछा गया था आपसे, व्हाट इज फोर्स फॉर डायलिसिस, व्हाट इज डायलिसिस फॉर कार्बोरेशन। तो ये सब मेम्ब्रेन सेपरेशन के ही एप्लीकेशंस हैं, और इसमें अलग अलग आपकी ड्राइविंग फोर्स यूज होती है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है डायलिसिस का, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स होता है। ओके। तो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, और इंडस्ट्री में भी यूज होता है साथ में, जहां पर आप प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करते हैं आप। तो अब हम लोग देखेंगे ये किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, और इसका कैसे क्या क्या टर्म्स होते हैं, और इसकी मॉडलिंग कैसे होती है डायलिसिस की। तो बैच डायलिसिस पहले पढ़ेंगे हम लोग। बैच डायलिसिस में आपका एक फीड चैम्बर है, और एक मेम्ब्रेन है, और एक डायलिसेट चैम्बर है। तो फीड आपका इधर से इधर जा रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ फीड आप देख सकते हैं ग्राफ में, इट इज रिड्यूसिंग विद टाइम, सी इज रिड्यूसिंग विद टाइम। तो ये आपका बैच डायलिसिस होगा, मेम्ब्रेन लगा हुआ है और उधर से फीड जा रही है, और आपको डायलिसेट मिल रहा है आपको। और एक इसी का दूसरा सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है, आपका फीड देख रहे हैं आप, फीड इन हो रही है, फीड आउट हो रही है, और डायलिसेट इन हो रहा है, डायलिसेट आउट हो रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये होता है काउंटर करंट ऑपरेशन टू एंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आप लोग ये काउंटर करंट ऑपरेशन कई जगह पढ़ चुके हैं आप लोग, बैक कॉलम में या ग्रे कॉलम में, कई जगह काउंटर करंट ऑपरेशन होता है, ताकि उससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट अच्छा होता है, और आपका सेपरेशन अच्छा रहता है इससे। तो फीड में से आपकी रिमूवल होता है इम्प्यूरिटीज का, वो आपका इससे बहुत ही अच्छे से होगा। हम लोग इसके मैकेनिज्म देखेंगे। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट। ओके। तो अब क्या क्या टर्म आते हैं इसमें, एन इज द मास फ्लक्स ऑफ ith स्पीसीज। ओके।
एंड तो NI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DIM इंटू DCIM बाई DX, और दैट इज DIM इंटू डेल्टा CIM बाई L। ओके, तो आप या तो मतलब इसको अब ये जो वेरियस टर्म्स है, DIM क्या है और डेल्टा C क्या है, CIM क्या है। DIM होता है वो होता है डिफ्यूजिविटी ऑफ ith सॉल्यूट मेम्ब्रेन, L होता है मेम्ब्रेन थिकनेस, और CIM होता है कंसंट्रेशन ऑफ ith स्पीसीज इन मेम्ब्रेन फेज। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपका जो सॉल्यूट है, ith सॉल्यूट है, वो डिफ्यूज हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, और इम्प्यूरिटीज होती हैं, और कुछ भी आपका यूरिया है, केराटिन है, ये सब इम्प्यूरिटीज आपकी मूव होती है डायलिसिस से। तो एक आपका फीड से लेकर आपका डायलिसेट में ये इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती हैं इस तरह से। और NI जो होता है वो फ्लक्स होता है, DI होता है डिफ्यूजिविटी और कंसंट्रेशन, और L इसकी मेम्ब्रेन थिकनेस। तो NI का जो फॉर्मूला आता है वो होता है DIM बाई L इंटू CIMF माइनस CIMD। तो ये M जो लगा हुआ है, इसका मतलब है मेम्ब्रेन फेज में जो कंसंट्रेशन है। ओके, और ये मेम्ब्रेन फेज का जो कंसंट्रेशन है वो मेजरेबल नहीं होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन में आप कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर सकते हैं। आप बल्क में तो कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, मेम्ब्रेन में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बिटवीन बल्क एंड ऑन दी मेम्ब्रेन सरफेस, दैट इज रिलेटेड बाय ए पार्टीशन फैक्टर। तो एक पार्टीशन फैक्टर होता है MI फॉर दी ith स्पीसीज, उससे हम लोग जो है बल्क और मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन को रिलेट कर सकते हैं। तो आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि फीड साइड है और एक डायलिसेट साइड है, एक बल्क कंसंट्रेशन है और एक मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन है। दोनों में फीड साइड में मेम्ब्रेन साइड कंसंट्रेशन है और बल्क कंसंट्रेशन है, इसी तरह मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन है और बल्क है। तो आपका जो ये अभी जो फॉर्मूला है DIM इज इक्वल टू DIM बाई L इंटू CIMF माइनस CIMD, दैट इसमें जो आपके टर्म्स हैं ये मेम्ब्रेन वाले टर्म्स हैं। तो MI के थ्रू आपको जो है ये टर्म्स रिप्लेस करने हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में, क्योंकि मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन आप मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि बल्क कंसंट्रेशन आप मेजर कर सकते हैं। CIMF by CIF is equal to MI, और that is equal to CIM by D by CID। ओके, तो ये आपका बल्क कंसंट्रेशन इन फीड एंड डायलिसेट है। CID एंड CIF आर दी बल्क कंसंट्रेशन इन फीड एंड डायलिसेट। तो इस तरह से जस्ट यहाँ पर आपका बल्क कंसंट्रेशन है और एक मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन है। अब ये आप क्या करेंगे, मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देंगे बल्क कंसंट्रेशन से यूजिंग MI। MI जो है दैट इज द पार्टीशन फैक्टर फॉर द ith स्पीसीज। तो इस तरह से NI जो हो, NI की यूनिट्स होती है kg पर मीटर स्क्वायर सेकंड। NI आप लोग कई बार बता चुका हूँ, फ्लक्स जो मास फ्लक्स है kg पर मीटर स्क्वायर सेकंड, दैट इज योर मास फ्लक्स। तो हम लोग ने कई बार फ्लक्स हम लोग ने बताया था कई तरह से होते हैं। वैसे आप लोग टीपी में भी पढ़ा होगा आपने, फ्लक्स कई तरह के होते हैं। एक आपका मास फ्लक्स होता है, और वॉल्यूम फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मास फ्लक्स पढ़ चुके हैं, और भी काफी फ्लक्स होते हैं। आपके मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स आपके कई तरह के होते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस, गिव अलोंग विद देयर यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर NI जो है वो आपका मास फ्लक्स है, और दैट इज इक्वल टू DIM बाई L इंटू MI इंटू CIF माइनस CID। अब हम लोग ने क्या किया, ये MI के यूज के थ्रू हम लोग ने मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन को बल्क कंसंट्रेशन में है, और ये जो बल्क कंसंट्रेशन होता है ये मेजरेबल होता है, क्योंकि बल्क में हम लोग कंसंट्रेशन फीड साइड और डायलिसाइड साइड में कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं बल्क का। और MI का जैसे कुछ सैंपल कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं MI की टिपिकल वैल्यूज कितनी होती हैं। तो MI इक्वल टू 5 फॉर यूरिया सॉल्यूशन एंड रीजनरेटेड सेल्यूलोज। और DIM टिपिकल वैल्यू होती है, आप जानते ही हैं, डिफ्यूजिविटी की वैल्यू होती है 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेंज में होती है DIM की वैल्यू। तो डिफ्यूजिविटी आप लोग कई जगह पढ़ चुके होंगे, उसकी यही रेंज होती है 10⁻11
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और दी हुई है जैसे फिनॉल के लिए, और फिनॉल Mi इक्वल टू 0.01 फॉर ए PE membrane, that is pre-ethyl membrane, and 20.5 for ethyl cellulose in material. Ethyl cellulose is membrane material. ओके, तो 17.5 होती है। अगर आपका मेम्ब्रेन मटेरियल आपने बदल दिया तो Mi की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो इसलिए Mi की वैल्यू तो आपको स्टैंडर्ड गिवन रहती है आपको, और DIM भी आपको पता है, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। ओके, तो इस तरह से Mi पता है, DI, इस तरह से आप लोग ये सब वैल्यूज पुट करके आप लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं डायलिसिस के लिए। आप मेजर करेंगे कंसंट्रेशन कितना है फीड में, कंसंट्रेशन कितना है डायलिसेट में, और उस तरह से आप लोग की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब DIM जो डिफ्यूजिविटी होती है वो आप लोग उसका भी एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो डिफ्यूजिविटी फॉर्मूला दैट इज DIM इज इक्वल टू DIB इनटू साइन बाय टाउ इनटू F ड्रैग। और DIB जो होता है वो होता है बल्क में, ओके, डिफ्यूजिविटी ऑफ ith स्पीसीज इन द बल्क, और DIM जो है वो आपका मेम्ब्रेन के लिए है। और ये कांस्टेंट्स हैं आपके, एप्सिलॉन इज द मेम्ब्रेन पोरोसिटी, टाउ इज द टॉर्चुओसिटी फैक्टर, F drag is the drag coefficient, एंड तो ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है आपको, आप देख सकते हैं नीचे 1 माइनस 2.1 RI बाय RS। तो RI जो है वो सॉल्यूट रेडियाई है, और RS जो है वो है पोर रेडियाई। तो RI और RS के टर्म्स में F ड्रैग दिया हुआ है। तो 1 माइनस 2.1 RI बाय RS प्लस 2.09 RI बाय RS होल क्यूब माइनस 0.95 RI बाय RS रेज़ टू द पावर 5। तो इस तरह से आप लोग डिफ्यूजिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, और ये सारे कांस्टेंट्स आप पुट करेंगे, और उस तरह से आप डिफ्यूजिविटी की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे आप लोग ये आप लोग फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आप लोग डायलिसिस में कितना फ्लक्स पूछा जाए तो आप लोग ये जस्ट सोल्यूशन कर सकते हैं। और MI के थ्रू आपने पहले जब आपने मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन बल्क कंसंट्रेशन में रिप्लेस किया है, और MI जो है वो आपका एक पार्टीशन फैक्टर है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 15 इज कंप्लीट। और आज हम लोग ने, मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया है। हम लोग ने ट्यूबुलर मॉड्यूल के लिए केस 3 किया है, और टर्बुलेंट फ्लो किया है, और मॉडलिंग इस तरह से कंप्लीट हुई थी हम लोग की, फिर डायलिसिस किया है। तो केस 3 में और टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग ने हर जगह यही किया है, हम लोग ने सारी इक्वेशंस लिख दी हैं, और हम लोग ने बोला है कि ये दैट इज यूजिंग स्टैंडर्ड DA और IVP लिखा है हम लोगों ने, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, दैट इज द सिस्टम ऑफ योर ODs। तो दैट इज उसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। आपको सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, आपको J की प्रोफाइल मिल जाएगी, प्रेशर की प्रोफाइल मिल जाएगी, CM, CP, CR, C की और C की जितनी भी हैं सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। और ये इतना आप लोग का डायलिसिस का हमने इंट्रोडक्शन किया है, और डायलिसिस में आपको बताया है कि किस तरह से आप लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी स्पीसीज का, ith स्पीसीज। ओके, कोई सॉल्यूट हो सकता है हम लोग का डायलिसिस में, ऐसा नहीं कि एक ही सॉल्यूट हम लोग का पास करेगा। फीड और डायलिसिस के बीच में हम लोग के कई सॉल्यूट पास कर सकते हैं। ओके, तो ith सॉल्यूट के लिए हम लोग ने लिखा है ये CI। ओके, आपका 1 2 3 4 सॉल्यूट हो सकता है जो कि पास कर रहा है बल्क फीड और डायलिसिस के बीच में। तो हम लोग ने इधर ith स्पीसी के ये फॉर्मूला लिखा है। तो इस तरह से हम लोग, मतलब आप लोग फीड और डायलिसिस के बीच में काफी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। फीड में से काफी चीजों का कंसंट्रेशन आप रिमूव कर सकते हैं। तो दैट इज दी हाउ डायलिसिस वर्क्स। So you have studied two types of dialyzer, batch dialyzer and continuous system. So this completes your lecture number 15.
or okay.